Assalamu alaikum, good afternoon and adab to every member. We are honored to welcome you all for one more session organized by Kashmir CP chapter. यहाँ पे ऑल्दो ठंड बढ़ गई है लेकिन हमारे वेबिनार्स बिल्कुल उसी स्पीड पे चल रहे हैं और we will hope that it will continue like this. We are honored to welcome our speaker for today, CA Praveen Sharma sir, on the topic of annual returns, GSTR 9 and 9C. Welcome Praveen Sharma sir. Thank you sir. सर आपकी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है. Thank you sir. आवाज आ रही है? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सर. Before you start sir, before I give the session towards you, I will just give a brief introduction about our speaker. CA Praveen Sharma is a fellow member of ICI with around 15 years of experience, a master trainer, a recognized faculty of ICI for indirect taxes. He has been a special invitee for direct tax committee and indirect tax committee. I don't want to speak about his qualifications, they are so vast, but still I would like to add on he's specialist in he's a certified anti-money laundering specialist and a certified forensic auditor. Not to forget his contribution to the professionals at large by name of GST Mitra, जो सर रन करते हैं और around I think 70,000 उसमें जो भी है बहुत सारी वो है एक गैदरिंग जिसको सर ने बना रखा है प्रोफेशनल्स का and keeps on updating us on GST. Sir has been delivering lectures and seminars and webinars for every platform, maybe through ICI or other chapters or sessions organized by other committees of all over India. I welcome you sir again and it's all over to you sir now. Thank you. Thank you, Khatib ji. And first of all, thanks to the Kashmir chapter, the convener, deputy convener, your side, and all the team members who are joining today with more than 30 participants. It's good. The chill day there at Kashmir, but here Delhi is okay. The topic is given to me. Again, thanks the Kashmir chapter for giving me another opportunity. Thank you, sir. हम सर हिंदी में भी बात कर लेंगे इंग्लिश में भी so that everyone is comfortable. ठीक है हिंदी is okay for everyone. बिल्कुल बिल्कुल सर. क्योंकि कन्वे मैसेज करना, मैसेज को कन्वे करना एक बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट टास्क भी है. लिसनर्स को जिस भाषा में इजी तरीके से समझ में आए उस तरीके से कन्वे कम्युनिकेट करना चाहिए. टॉपिक इज 9 and 9C. 5 साल GST को. There are 5 years of GST. Right now we have taken so many things. हमने बहुत सारे इश्यूज देखे, बर्निंग इश्यूज देखे, क्लरिकल इश्यूज देखे. I request everyone to please mute your mic so that I request everyone please mute your mic so that I convey my message quickly and as soon as possible at the earliest. So 9 and 9C 17-18 में भी आया था, 18-19 में भी था, 19-20 में भी था, आज 21-22 का आज हम करने बैठ रहे हैं. तो हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन हर साल आ रही है कि हमें कौन सी टेबल मैंडेटरी फील्ड करनी है, कौन सी टेबल ऑप्शनल फील्ड करनी है. 17-18 जब आया था तो सरकार ने कहा कि देखो हमारे पास सिर्फ आपको टर्नओवर की डिटेल फील्ड करनी है, उससे रिलेटेड जो टैक्सेस है वो देखना है, इसके अलावा हमें और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है. धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टेप्स बढ़ते गए, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हुई, फेक इनवॉइसेस बने और आपको ध्यान होगा कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2021 HSN summary of the outward supply was mandatory to be reported in GSTR1. ये आपको सबको पता है कि GSTR1 आप फील्ड भी कर रहे होंगे अपने GSTR1 के अंदर कि 4 डिजिट और 6 डिजिट
mandatory HSN code to be put. Likewise, in the similar fashion, GSTR 9 के अंदर भी ऐसी बातें लिखी हैं कि जो मेरा टेबल नंबर 17 है HSN का, वो वहां पे मैंडेटरी हो जाता है. सो जैसे जैसे प्रोसेस कंटिन्यू होता है, कहीं ना कहीं लीकेज जो रेवेन्यू की हो रही थी उसको ब्लॉकेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. कुछ टेबल ऑप्शनल से मैंडेटरी होती हुई जा रही है. कोई नई बात नहीं है. 99C आपने अपने सब क्लाइंट की फाइल करी होगी, और कहीं ना कहीं इन 5 सालों के अंदर आपको ये भी पता लग गया होगा कि किस टेबल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन फिल होंगी. ऑब्वियसली आज का टॉपिक इसी सिनेरियो से ही रिलेटेड है कि 99C कैसे फाइल करनी है. बट हमें ये जरूरी है आज देखना इस 1-1.5 घंटे 2 घंटे के सेशन के अंदर कि 99C 21-22 को कैसे फाइल करना है. उसमें से कौन सी टेबल मैंडेटरी है, कौन सी टेबल स्टिल ऑप्शनल है. मेरे पास एक वर्ड फॉर्मेट में, कतीब जी मुझे आप होस्ट बना दीजिए, मैं कुछ पीपीटी या वर्ड फाइल शेयर कर सकूं. आपने होस्ट बना दिया मुझे? यस, इट्स ओके. सो 9 and 9C फॉर 21-22. हमें 21-22 देखना है. GSTR 9 एनुअल रिटर्न, GSTR 9C इज द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ऑडिट नहीं है, जीएसटी ऑडिट नहीं है. चार्टर्ड अकाउंटेंट के भी सिग्नेचर नहीं होंगे. किसके सिग्नेचर होंगे? टैक्स पेयर के. सो जीएसटीएन ने क्या कर दिया, अभी कुछ दिन पहले अक्टूबर के अंदर ही इनेबल कर दिया था 99C को फाइल करना. मैं आपसे पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा, क्या किसी मेंबर्स, रेस्पेक्टिव मेंबर्स ने 99C को फाइल करना शुरू किया या किसी की सबमिट हुई है? एनीवन? खतीब जी, एनीवन? Members can use the chat box. Let me check. 9 फाइल. सीए मुस्तफा जो कह रहे हैं 9 हमने फाइल कर दी. ठीक है. अब एक ही मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई है कि एक मेंबर्स ने यहाँ पे 9 को फाइल कर दिया. लास्ट 2 days 3 days 4 days के अंदर देयर इज स्टिल एन इशू इन GSTR 9. वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि उसमें क्या इश्यूज क्रिएटेड हो रहे हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यू डेट इज 31st of December 2022. The taxpayer whose aggregate turnover in financial year 21-22. मेरा एग्रीगेट टर्नओवर, व्हाट इज माय एग्रीगेट टर्नओवर? क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन हैं कि व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर. चैट बॉक्स में आप लिखना शुरू करेंगे, व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर, व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर मीन, व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर मीन, व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर. एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी के अंदर एक अलग टर्नओवर क्लासिफाइड है. टर्नओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अलग क्लासिफिकेशन है. इनकम टैक्स कहता है कि मुझे तो प्रॉफिट से मतलब है, इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर. तो अलग अलग लॉज में अलग अलग चार्जेबिलिटी क्रिएट की गई कि मेरी टैक्सेबिलिटी किसके ऊपर बनती है, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट किसके ऊपर बनती है. तो द टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर, aggregate turnover means you can say the taxable supply, the exempted supply. Exempted supply can be the non-GST supply, wholly exempted supply.
और क्या आता है इसके अंदर? एक्सपोर्ट सप्लाईज, nil rated supply, non GST supply. So it means I can say for easy understanding purpose कि मेरी aggregate supply includes everything, the taxable supply, exempted supply, export supply, but reverse charge supply को छोड़ दो. मैं एक रेस्टोरेंट वाला हूं, ठीक है, मैंने कश्मीर श्रीनगर में आकर के मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया और मैंने अपने आप को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रजिस्टर करा लिया. ध्यान से सुनना, मैं हूं रेस्टोरेंट ऑपरेटर और मैं सप्लाई करता हूं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, थ्रू जोमेटो, थ्रू स्विगी. आपसे रिक्वेस्टेड है इन योर चैट बॉक्स, if I am supplying through e-commerce operator, through Swiggy, through Zomato, क्या ये सप्लाई एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई है, या रिवर्स चार्ज सप्लाई? क्या ये में एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? सबसे पहले, क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है या एग्जेम्प्टेड सप्लाई है? एनीवन? ये मेरी टैक्सेबल सप्लाई है, खतीब जी कह रहे हैं मेरी टैक्सेबल सप्लाई है. क्या वहां पे इस तरीके का सिस्टम होगा भी? मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक सो, कि कश्मीर या जम्मू चले जाओ या एक बड़ी सिटी में चले जाओ जहां क्लाउड किचन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा वास्ट फॉर्म में बढ़ रही है, इसकी ग्रोथ बहुत वास्ट हो रही है. अगर मैं एक रेस्टोरेंट वाला हूं, आई एम सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो यहां पे लास्ट ईयर नोटिफाइड हुआ था, सर्कुलर भी आया था, दैट क्लेरिफाइड द ट्रांजैक्शन, द चार्जेबिलिटी, दैट कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होंगे, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होंगे लाइक स्विगी एंड जोमेटो, they are liable to pay the GST on such transaction, not the restaurant wala, not the restaurant wala. अच्छा, जीएसटी किसको पे करना है? अभी तक हमें समझ में आ गया जीएसटी किसको पे करना है, स्विगी और जोमेटो को पे करना है. सर्कुलर क्लैरिफाइंग, I think 164 or 165, that is clarifying that if I am supplying through e-commerce operator, that is to be treated as a exempted supply. And but ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर जीटीए हूं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूं, मैं एक एडवोकेट हूं, मैं एक स्पॉन्सरशिप सर्विस वाला हूं, क्या ये सारी सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है? जी हाँ, ये सारी सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है. इन रिवर्स चार्ज की सप्लाई के ऊपर, इन रिवर्स चार्ज की सप्लाई के ऊपर जो रिसिपिएंट होगा उसी को टैक्स पे करना होगा. पहले वो टैक्स पे करेगा, फिर उसका क्रेडिट लेगा, राइट? बट हियर द सिनेरियो इज डिफरेंट. हियर द सिनेरियो इज डिफरेंट. ई कॉमर्स ऑपरेटर की ट्रांजैक्शन एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो ट्रांजैक्शन. हम उस बात पे आएंगे कि कौन सी टेबल ऑप्शनल है, मैंडेटरी है. पहले हम एक बेसिक फॉर्म में मैं अपनी बातों को कन्वे कर पा रहा हूं, तो ताकि उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बने टर्नओवर की. मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस पिछले लास्ट 5 इयर्स में देखे जहां एग्रीगेट टर्नओवर ही कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. वहां अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो डिपार्टमेंट इज गोइंग टू कंसीडर टू फाइल or sorry to send the notice in ADT1. What is ADT1?
मैं ऑडिटर अपॉइंटमेंट का नहीं कह रहा, मैं ADD 1 भरा होगा ना, ADD 1। मैं कौन से ADD 1 की बात कर रहा हूं? Anyone seen ADD 1 in GST? सब CPR ले रहे हैं क्या? Anyone seen ADD 1 in GST? MCA पे तो हमने देखा ADD 1, but have you seen ADD 1 in GST? कोई नहीं है बोलने वाला। नो, चलो सर सर एक्चुअली जीएसटी में पैसा कम मिलता है ना। ओके। पर GST का जो दायरा है जी, वो उससे भी ज्यादा बड़ा है। दैट इज ट्रू सर, बट इट्स ऑन ए ट्रांजिशनल फेज, तो अभी जो है चल ही रहा है ना अभी। एक्चुअली अभी टेकिंग कश्मीर, फॉर एग्जांपल कश्मीर में सिचुएशन इज डिफरेंट। एक्चुअली अगर फेक इनवॉइसिंग वगैरह जो भी होती है उसकी मटेरियलिटी ज्यादा बाहर होती है, यहाँ पे राइट उतना होता ही नहीं है, बिकॉज इट्स अ स्मॉल प्लेस। राइट तो राइट। ये चीजें यहाँ पे है, तो इतना तो आपको मार्जिन दे के चलना है सर। आई नो सर। हाँ, यहाँ क्योंकि यहाँ पे भी जो डिपार्टमेंट है वो भी ऐसे एक्ट नहीं करता, बिकॉज इट आल्सो एक्ट्स ऑन ए मटेरियल बेसिस। यहाँ पे उतनी ज्यादा मटेरियलिटी बनती नहीं है, बट वी शुड ऑल नो व्हाट इज लॉ, We should know व्हाट how इज the लॉ। process is and how the process will going to affect in future also, दैट इज ट्रू सर। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे सर जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस का काम होता था ना बाहर, जैसे राइट सर्विस टैक्स था राइट पहले, तो बड़ा काम होता था। सर्विस टैक्स वर नेवर एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ J&K। यस उसके बाद जब जीएसटी आ गया तो जीएसटी में थोड़ा सा अभी जो है उस लेवल पे नहीं है, बिकॉज यहाँ की मार्केटिंग जो मार्केट की जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो उतनी ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं, उतनी ज्यादा नहीं जो उधर है कहीं ना अभी। कहीं there are less number of registration, less number यस of transaction, less number of एग्जैक्टली सर। instances, everything is there. So it's okay. I also feel that Kashmir is a small city, even बहुत सारी चीजें आपके सामने अभी भी नहीं आई होंगी, एग्जैक्टली सर। बट स्टिल मेरा मकसद हाँ, वी हैव टू गेट प्रिपेयर्ड सर, हमें तो प्रिपेयर होके चलना है ना सर। यस 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 ओके सर, स्टार्ट प्लीज। 99C हमने फाइल किया है, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कि ठीक है 99C की कॉस्ट कौन सी टेबल में क्या इंफॉर्मेशन जाएगी, हमने उसको सीख लिया है। बट नाउ द क्वेश्चन इज अगेन कि 99C कब जाना है। माय फर्स्ट क्वेश्चन पिछले सर एडी सर 15 एक्सक्यूज मी 20 दिन सर, से एडीटी 1 पे आ जाइए ना सर, एडीटी 1। बिल्कुल बिल्कुल उसी पे आ गया मैं। ADD 1 इज फॉर डिपार्टमेंट कहता है कि हम आपका करेंगे ऑडिट, हम आपका करेंगे ऑडिट। आपने अपनी कुछ ट्रांजैक्शंस को नहीं दिखाया है, 26 AS ले आइए, अपनी ITR ले आइए, आपकी ये टर्नओवर कहीं से पता लगी है, ये ट्रांजैक्शन आपने कहीं से करी है या फेक इनवॉइसिंग है वगैरह वगैरह। उसके अंदर मल्टीपल 14 15 20 21 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो दिल्ली के अंदर ये बहुत ज्यादा चलन में चीजें चल रही है। समन्स सेक्शन 70 आप बुलाओ, इंक्वायरी करो, और उसके अगेंस्ट आपको लगता है देयर इज अ लॉस ऑफ रेवेन्यू, तो वो सेक्शन 73 74 में नोटिस इशू होता है। सेकंड इज, अब इसकी तो ऑडिट कर लेते हैं, इसका हमने रेकी कर लिया, इसका हमने वॉचफुल कर लिया कि ठीक है कहीं ना कहीं देयर इज अ समथिंग, देयर इज अ लॉस ऑफ रेवेन्यू। सो अब हम आपको एक ADD 1 इशू कर देते हैं। मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। मेरे सामने एक केस आया था एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड। क्या केस था? अब ये एग्रीगेट टर्नओवर आपको क्या पिक करना है? पैन इंडिया वाइज पिक करना, पैन इंडिया वाइज। एक कॉर्पोरेट का इंडिया के अंदर एक सिन नंबर होगा और एक ही पैन नंबर होगा। एक पैन नंबर पे मल्टीपल GSTN हो सकते हैं। एक स्टेट में कितने GSTN हो सकते हैं?
एक स्टेट में कितने GSTN हो सकते हैं? टोटल मान के चलो 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। मैडम कह रही है, मैडम अर्चना भट्ट, there can be one GSTN per state. Anyone who can throw light? फिर तो मैं अपनी बात कह ही दूंगा, क्योंकि मैंने इन्फोसिस के साथ जब GST आया नहीं था उस समय से काम कर रहा हूं, और there are so many technical things, more than one, many multiple GSTN in one state. तो जब GST आया था ना दोस्तों, जब GST आया था तो उस केस में क्या हुआ था, वो कहता था सेक्शन 22 के अंदर कि आपके डिफरेंट वर्टिकल्स होंगे। आप एक प्लास्टिक का काम करते हैं, उसका GSTN, आप आयरन स्टील का काम करते हैं, उसका GSTN, आप टूर ऑपरेटर का काम करते हैं, उसका GSTN, आप लैपटॉप का काम करते हैं, उसका GSTN। सो देयर कैन बी मल्टीपल GSTN फॉर डिफरेंट वर्टिकल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स वर्टिकल कंसेप्ट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द लॉ। वर्टिकल कंसेप्ट को हटा दिया गया, वर्टिकल कंसेप्ट को हटा दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब क्या मैं एक स्टेट में एक से ज्यादा GSTN ले सकता हूं? सरकार कहती है जरूरी नहीं, बट अगर मैं 10 या 15 बिजनेस में डील करता हूं, इवन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर, तो क्या मैं 15 रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं? जी हाँ, मैं ले सकता हूं। मैं 20 ले सकता हूं? जी हाँ, मैं 20 भी ले सकता हूं। मेरा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिफरेंट सिटी के अंदर हंड्रेड्स ब्रांचेस हैं। क्या मैं हंड्रेड्स GSTN ले सकता हूं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में? जी हाँ, ले सकता हूं। There can be 630 numbers possibility per state, मल्टीप्लाई आप 37 कर लो, तो इतने रजिस्ट्रेशन में ले सकता हूं। There can be combination of 13 digit, 14 digit and the 15 digit of the GSTN. तो पहले 2 डिजिट तो आपकी स्टेट कोड आती है, नेक्स्ट 10 डिजिट आपकी पैन की आती है, नेक्स्ट जो 3 डिजिट होती है 13, 14 एंड 15 डिजिट, उसकी आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लगाओगे फ्रॉम 1 to 9, सॉरी 1 to 9 एंड A to Z, मल्टीप्लाई आप करोगे तो 630 पॉसिबिलिटी कैन बी देयर पर स्टेट। पर स्टेट। ऐसे मेरे सामने एक चीज आई थी, 20 ब्रांचेस थी। मैंने अप्रैल में ऑडिट करना शुरू किया, कंपनी ने अपनी सारे क्लोजिंग फाइनेंशियल कर लिए। पिछले 4 सालों में कंपनी की 12 ब्रांचेस थी। 12 ब्रांचेस में से एक ब्रांच का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा था। तो वो एक ब्रांच मान के चलो वो दिल्ली में थी, बाकी ब्रांचेस एक जम्मू कश्मीर में थी, एक हिमाचल में थी, एक पंजाब में थी, एक बंगाल में थी। तो 11 में से एक ब्रांच का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा था, तो उसकी 9 भी फाइल हो गई और उसकी 9C भी फाइल। बाकी 10 ब्रांचेस का टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे था। क्या उनकी 9 फाइल होनी थी? एनीवन? क्या उनकी 9 फाइल होनी थी? आमिर जी कह रहे हैं यस। क्यों होनी थी? टर्नओवर की लिमिट तो 2 करोड़ थी ना, 2 करोड़ तक 9 फाइल करनी, 5 करोड़ तक 9C फाइल करनी, सॉरी 2 करोड़ तक 9 फाइल नहीं करनी, 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो 9 फाइल करनी है, और 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो 9C फाइल करनी है। अब उन 10 ब्रांचेस ने अपनी 9 फाइल नहीं करी, और इवन 9 फाइल नहीं करी तो 9C भी फाइल नहीं करी। क्या ये जरूरी था? क्या ये मैंडेटरी था? एनीवन? दूसरी रिप्लाईज आ जाएंगे तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि मेरी बातें सुन रहे हैं सब पार्टिसिपेंट। मैडम अर्चना कह रही है टर्नओवर एज पर फाइनेंशियल मोर देन 5 करोड़। नो। क्या उनको 9 फाइल करना था?
2-3 और जवाब आ जाएंगे, फिर मैं अपनी बातों को और इलेबोरेट कर लेता हूं। क्या मुझे 9 फाइल करना था? मैडम सरिता कह रही हैं यस। तो अभी मैंने एक बात कही थी, क्या बात कही थी? द टैक्सपेयर हैविंग annual aggregate turnover in that financial year. सेकंड कंडीशन, मतलब फर्स्ट कंडीशन ये ले लो, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर मेरा पैन इंडिया वाइज, ध्यान से सुनिएगा, पैन इंडिया वाइज एक पैन पे मेरे 15 जीएसटी हैं। तो अगर एक फाइल करोगे उससे काम नहीं चलेगा अगर वो 2 करोड़ से ऊपर है। इवन बाकी 10 ब्रांचेस में आपका टर्नओवर 1 रुपए भी है, 10 रुपए भी है, 100 रुपीज भी है, 10 lakhs भी है, तब भी उसका 990 जाएगा, क्योंकि वो पैन इंडिया वाइज की ट्रांजैक्शंस को कहता है। मेरा यहां पे पॉइंट यही था, द टैक्स पेयर whose aggregate turnover in the financial year 21-22 is up to 2 crores have been exempted from filing the annual return. नोटिफिकेशन 10/2022 आया 2022 के अंदर, और बाकी सब टैक्स पेयर को अपनी 9 को फाइल करना है। इसका मतलब कि जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है वो एग्जेम्प्टेड है। देखो, एग्जेम्प्टेड है या ऑप्शनल है, क्या मैं फाइल कर सकता हूं या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा टर्नओवर मान के चलो कि मेरी एक ही जीएसटी आएंगे और उसका टर्नओवर 1 करोड़ है, क्या मैं फाइल कर सकता हूं या नहीं? एग्जेम्प्टेड हूं, ऑप्शनल हूं या मैंडेटरी हूं? पहली बात, मैंडेटरी तो नहीं, क्योंकि अगर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ तक है मुझे 9 फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। बट यू कैन फाइल, ताकि एक रिकंसिलेशन बनी रहे, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन एक मेरे सामने हैंड रेज हुआ है, आप बताइए कुछ कहना चाहते हैं? You can unmute yourself. Just saying से कोई join किया हो। I think it's by mistake. Okay. So the taxpayer having annual aggregate turnover in the financial year 21-22 is up to 2 crores of rupees, उनको 9 फाइल करने की जरूरत नहीं। फिर कहता है कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है उनको 9C फाइल करने की जरूरत नहीं। तो मेरे सामने टेबल आ रही है एग्रीगेट टर्नओवर की। क्या टेबल है कि अगर मेरा 2 करोड़ तक का टर्नओवर है तो 9 और 9C दोनों आपको फाइल नहीं करनी। अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक, उस केसेस में जीएसटी या 9 की एप्लीकेबिलिटी बनेगी। मैंडेटरी फाइल करना वहां पे एक जीएसटीएन वाले को करना है, पर पैन जितने जीएसटीएन है उन सबको करना है। बट 9C यहाँ पे क्या है, एग्जेम्प्टेड है। और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उस केसेस में 9C दोनों फाइल करनी जरूरी है। आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर है। 9 के अंदर टोटल 19 टेबल है, 19 टेबल। ओ माय गॉड, 19 टेबल। तो अब 19 टेबल में से जहां तक मुझे लगता है कि 19 में से टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 9, राइट, सिर्फ इतनी फिल होती है। टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 8, टोटल 5 टेबल आप फिल किया करते थे टोटल 19 में से। बाकी ऊपर की 4-5 टेबल वो मैंडेटरी है, नीचे की 3-4 टेबल जो लेट फी है वो अलग चलती है। यहाँ पे 19 टेबल है और 9C में 16 टेबल है। अब हम एक एक टेबल उठाते हुए लेकर के चलेंगे कि कौन सी टेबल ऑप्शनल है, कौन सी टेबल मैंडेटरी।
ऑप्शनल टेबल के लिए रेडी रेफरेंस आपको मैंने दे दिया यहाँ पे, नोटिफिकेशन जो इशूड है हर साल की, ये हमारे पास ना एक रेडी रेफरेंस रहता है, क्योंकि हमें एज अ कंसल्टेंट, एज अ एडवाइजर, ये हमें पता होना चाहिए कि जिस साल की मैं एनुअल रिटर्न या 9C फाइल कर रहा हूं, उस साल की टेबल ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, उसके लिए मेरे लिए क्या नोटिफिकेशन का रेफरेंस है, क्योंकि ये बातें उठती हैं ऑडिट के पीरियड के वक्त, स्क्रूटनी के वक्त, तो वहां पे नहीं है ऐसा सिस्टम। फिर भी हमारे पास एक रेडी रेफरेंस है कि 21-22 के लिए मुझे कौन सा नोटिफिकेशन रेफर करना है, 14/2022 का, राइट। ऑप्शनल टेबल में 1 मिनट 9 को मैं शेयर कर देता हूं। यस, देखिएगा, पहली 3 टेबल फाइनेंशियल ईयर, जीएसटीएन, लीगल नेम, ट्रेड नेम, ये यहां पे कवर हो जाती है पहली 3 टेबल। नेक्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल जिसके अंदर आपको कौन सी सप्लाई देनी होती है, अच्छा मेरा रिवर्स चार्ज का पॉइंट तो फिर दोबारा रह गया था वहां पे। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर टैक्सेबल सप्लाई आएगी, एग्जेम्प्टेड सप्लाई आएगी, नील रेटेड सप्लाई आएगी, नॉन जीएसटी सप्लाई आएगी। क्या इस सप्लाईज के अंदर आरसीएम सप्लाईज भी आती हैं? मेरे पास आंसर आ गया, रिवर्स चार्ज नॉट इंक्लूडेबल, मतलब रिवर्स चार्ज की जो सप्लाईज होती हैं वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनती। इवन टैक्सेस जो जीएसटी के हैं वो भी पार्ट नहीं बनता। मैं एक रेस्टोरेंट वाला हूं, मैं सप्लाई करता हूं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, मेरी वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है और उसका टर्नओवर 2.5 करोड़ है, तो क्या मुझे 9 फाइल करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जेम्प्टेड सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा इस केस में, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए एक डिफरेंट एनुअल रिटर्न 9B जिसको हम कहते हैं, वो अपनी ट्रांजैक्शन उसमें अंदर अलग दिखाएगा, हम अपनी ट्रांजैक्शन एज अ एग्जेम्प्टेड सप्लाई दिखाएंगे यहाँ पे। ओके, सो मैं यहाँ पे था अपनी टेबल नंबर 4 पे। टेबल नंबर 4 का जो 4A से लेकर के आपका 4G, ये दिख रहा होगा आपको, टेबल नंबर 4A, B2C, B2B, जीरो रेटेड सप्लाई, इसका मतलब एक्सपोर्ट सप्लाई, सप्लाई टू SEZ, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, एडवांसेस और इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं 4G। अब तो 5G आ गया, कश्मीर में अभी कौन सा जी चल रहा है? सर 5G चल रहा है, हम तो कभी कभी 6G भी चला रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, इट्स ग्रेट। व्हाट अबाउट जीटीए? जब जीटीए की जो सप्लाईज होती है वो उसके लिए एग्जेम्प्टेड सप्लाईज होती हैं इन द सिमिलर फैशन, बट अगर आप जीटीए हो, आप मुझे सप्लाई देते हो, मेरा वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, मेरा वो फ्रेट का खर्चा है, तो मेरे लिए वो रिवर्स चार्ज की सप्लाई होगी। वो रिवर्स चार्ज की सप्लाई मेरा एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। ये क्या हुआ? अरे एक टर्नओवर था करीब 1.5 करोड़ का, 9 जाएगा? नहीं जाएगा। उसने क्या किया, उसने अपने क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, मैंने बोला इसकी बाइफर्केशन तो दिखा दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा हूं, आईटीआर फाइल कर रहा हूं, तो उसकी क्लोजिंग स्टॉक में जाकर के उसकी बाइफर्केशन जो देगी, उसने बोला स्टॉक ट्रांसफर 2 करोड़ का। ठीक है, मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक था,
मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक था, कुछ परचेजेस थी, उससे मैंने 1.5 करोड़ की सेल कर दी और बाकी अमाउंट ट्रांसफर कर दिया दिल्ली से कश्मीर 2 करोड़ का। क्या इसका 9 जाएगा? क्योंकि टर्नओवर तो मेरी 1.5 करोड़ की है। अभी पीछे एक मैसेज आ रहा था, यस, पीछे एक मैसेज आ रहा था, चलो आ भी रहा था, नहीं आ रहा था, फिर भी फॉर द सेक ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि टर्नओवर एज पर, और जैसे हम कहते हैं ना सेल एज पर पीएल अकाउंट, वो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है। मेरा एग्रीगेट टर्नओवर तो मेरा जीएसटी वाला एग्रीगेट टर्नओवर है। जो मैं जीएसटी वाला जो मेरा टर्नओवर है, इनकम टैक्स वाला अलग टर्नओवर है, एमसीए कहता है मेरा अलग टर्नओवर है, जीएसटी कहता है मेरा अलग टर्नओवर है। कंफ्यूजिंग इतनी हो जाती है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कहता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, आज मैंने 5 करोड़ की रिसीट ले ली, 5 करोड़ की रिसीट ले ली, बड़ी 5 करोड़ तो क्या है, इसमें से 5 करोड़ में से 3.5 करोड़ मेरे नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स के हैं। क्या है? नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स के। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल कितने का बुक होगा? 5 करोड़ मेरी एक्चुअल रिसीट्स है, पर 5 करोड़ मैंने एडवांस में पैसा ले लिया, बट इसकी सर्विसेज मैं रेंडर करूंगा अगले 12 महीने। तो 5 करोड़ में से बाकी 3.5 करोड़ जो है वो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से रिलेटेड है। तो ये जो 3.5 करोड़ हैं ये मेरे रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनेगा सेल एज पर पीएल अकाउंट। बट 5 करोड़ की आपने जो पेमेंट पिक करी है मार्केट से, एंड इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई, देन जीएसटी शैल बी लेवी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा और आपको अपनी 99C 5 करोड़ से ऊपर होते ही फाइल करनी जरूरी हो। द पर्पस इज दिस कि आपको एग्रीगेट टर्नओवर पिक करना है, स्टॉक ट्रांसफर मेरा सप्लाई का पार्ट होगा, राइट? और क्या क्या डिफरेंट सिनेरियो है, आपको सेक्शन 15 की जो वैल्यूएशन है वो पिक करनी पड़ेगी, सेकंड हैंड यूज मोटर कार, लाइक, तो उस केसेस में सबकी वैल्यूएशन अलग अलग। आज का हमारा सिनेरियो जो इवन दिल्ली में भी कम चलता है, बेंगलोर और हैदराबाद पुणे में ज्यादा चलता है। मैं बेंगलोर हैदराबाद पुणे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो एक आईटी हब है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा जीएसटी का घुमाव इतना है कि वो कहता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, अपने डायरेक्टर को सैलरी देती 2 करोड़ की, क्या आपने इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया? हाँ जी, सैलरी का तो मतलब पता है हमें, सैलरी के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगता। एनीवन? सैलरी के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगता। सैलरी के ऊपर जीएसटी लगता है नहीं लगता? क्यों लगे? कंपनी का एक्सपेंस है सैलरी, सैलरी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जहां रिलेशन होगा उस केसेस में जीएसटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर सैलरी। तो वहां पे कॉर्पोरेट्स के ऊपर क्या एडीटी 1 इस तरीके से होता है कि आपने जो सैलरी 2 करोड़ की दी ना डायरेक्टर को, और 8 ब्रांचेस हैं, ये 8 ब्रांचेस में उनके टर्नओवर बेसिस पे सैलरी होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूट कॉमन एक्सपेंसेस। क्योंकि अब कॉमन एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे सर्विस टैक्स नहीं था तो आपने उस तरीके से उसको डील भी नहीं किया है, बट जीएसटी के अंदर अगर एक कॉमन आईटीसी मैं टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, जो मैंने एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए जो आईटीसी यूज किया था उसका मुझे रिवर्सल करना पड़ता है।
सिमिलर उस तरीके से फैशन से कि आपका जो एक खर्चा है सैलरी का 2 करोड़ का, वो एक कॉमन एक्सपेंसेस है, 8 ब्रांचेस से रिलेटेड है, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट ब्रांचेस में और उसके ऊपर लगाना है जीएसटी। सो ये भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बने। मूविंग टू जीएसटीआर 9 पे पहुंचता हूं। अच्छा, टेबल नंबर 4 आपके सामने, क्या मुझे जीएसटीआर 1 से डेटा पिक करना है या 3B से पिक करना है? आपके सामने टेबल नंबर 4, क्या ये मुझे डेटा 1 से पिक करना है या 3B से पिक करना है? मैडम रूही 1, सीए मुस्ताजू जी कह रहे हैं 1, जुनैद कादी जी कह रहे हैं 1। एक मान के चलो कि अरे यार पूरे साल की मैंने 1 फाइल ना निल की हो गई, हो सकता है, हो सकता है, पर 3B में मैंने टैक्स पे से पे कर। अब डेटा कहां से पिक करूं? अब डेटा मैं कहां से पिक करूं, क्योंकि 1 में डेटा तो मेरा 0 है। अब कह रहे 3B से पिक करो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने 3B में टैक्स पे ही नहीं किया, 1 फाइल कर दी, 9 में पहुंच गए। अब आप क्या कहोगे कि जो टेबल नंबर 4 में जो डेटा है वो 1 से पिक कर लूं? अब तो मुझे 1 से पिक करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारी बुक्स में टोटल टैक्सेबल सप्लाई 100 रुपीज, क्या है 100 रुपीज। अब उस 100 रुपीज में से, मैं एक मिनट थोड़ा एक्सेल ओपन कर लेता हूं और शेयर करके मैं दिखाता हूं। मेरी बुक्स में टर्नओवर इज 100 रुपीज, इसके ऊपर टैक्स मेरा 5 रुपए, ठीक है। मैंने अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर इसको डाला 80 रुपीज और 4 रुपीज। मैंने अपनी जीएसटीआर 3B में डाला 60 रुपीज और 3 रुपीज। आप अब फाइल करने बैठे अपनी जीएसटीआर 9। क्या टेबल नंबर 4 के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे डालनी है? मैडम रोही कह रही बुक्स। एनीवन जिनका आंसर इससे अलग हो? सर कह रहे हैं 1। What is the purpose of 9? What is the purpose of 9? देखो, कोई भी रिटर्न 1 या 3B जो फाइल होती है उसकी रेक्टिफिकेशन हम अगले महीने में करते हैं, नेक्स्ट टैक्स पीरियड में करते हैं, क्योंकि वो एडिटेबल नहीं, वो रिवाइज्ड नहीं हो सकती, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट टैक्स पीरियड में करना पड़ता है। अब हो सकता है कि 21-22 की कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस मैंने 22-23 में भी करी हो, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ठीक है हमने आपको रिवीजन की फैसिलिटी नहीं दी, हमने आपको एडिटेबल की फैसिलिटी नहीं दी, हम आपको एक ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप पूरे साल का ब्यौरा यहाँ पे आप एनुअल इंफॉर्मेशन
के जरिए यहाँ पे आप दे दो, ठीक है। बट यहाँ पे आप बता दो, यहाँ पे आप ये बता दो कि टेबल नंबर 4 के अंदर आप वो डेटा डालो और टेबल नंबर 5, 10 के अंदर आप ये डेटा। वो ऐसे कहता है, क्या कहता है? रिलेटेड टू आउटवर्ड, रिलेटेड टू आउटवर्ड। क्या कहता है आउटवर्ड? कहता है कि टेबल नंबर 4 में आप वो फिगर को पुट करना, उस फिगर को पुट करना जो आपकी 21-22 की आपने इसकी टैक्स पेमेंट 21-22 में करें। टेबल नंबर 4 में वो फिगर पुट करना, टेबल नंबर 4 में वो फिगर को पुट करना कि 21-22 का टैक्स आपने 21-22 में पे किया। टेबल नंबर 10 के अंदर, 10 ले लो एक बार, ऑफ जीएसटी ऑनलाइन, 21-22 का जो भी टैक्स या उसका टर्नओवर, दोनों चीज की बात कर रहा हूं, क्योंकि टर्नओवर टैक्स साथ साथ जाएगा। इसका टैक्स पेमेंट, मतलब टैक्स पेमेंट की जगह मैं ये कह सकता हूं कि 3B लिख सकता हूं। 3B 21-22 का ट्रांजैक्शन मैंने 3B 22-23 में किया। क्या इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहा है कि आपको अपने टेबल नंबर 4 के अंदर कौन सी टर्नओवर लेनी है? 60 रुपए लेनी है और 3 रुपए का टैक्स लेना है। बट अब सरकार कहती है कि अगर आपने बुक्स में टर्नओवर ज्यादा है और 3B में आपने कम लिया है, तो जो 40 रुपीज का जो टर्नओवर है जो आपने पे नहीं किया, वो आपको यहां पे पुट करना है और इसके ऊपर 5% कितना हुआ? 2 रुपीज। ये टैक्स आपको DRC 03 के साथ पे करते हुए इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना। तो टोटल अल्टीमेटली मैंने कितना रिपोर्ट कर दिया? 100 रुपीज और उसके ऊपर टैक्स 5 रुपीज। अगेन, अगर कभी ऐसा हो, ये मान के चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपको मिले कि आपको GST/9 की टेबल 4 के अंदर कौन सा डेटा डालना है, कौन सा डेटा पुट करना है? जो आपने सप्लाईज करी उसके ऊपर जो टैक्स पेड किया, जिस साल के एनुअल रिटर्न है उस साल के अंदर उसका अगर टैक्स पेड किया है तो उसको अपने टेबल नंबर 4 के अंदर पुट कर। और यही अगर टर्नओवर आपने अगले साल रिकंसिलिएशन में लिया है तो वो आपको टेबल नंबर 10 में जाकर के, और कहीं आपने कोई टर्नओवर ही नहीं दिखाई, टर्नओवर कहां नहीं दिखाई? 3B में नहीं दिखाई, मैंने उसका टैक्स भी पेड नहीं किया, तो मुझे कहां लेना है? मुझे अपने टेबल नंबर 4 के अंदर जाकर के उसको लेकर के जाना है। तो 4 की इंपॉर्टेंस क्या है? फ्रॉम, मैं कह सकता हूं कि ये मेरा 3B है, 3B के लेफ्ट वाला पोर्शन, 3B के लेफ्ट वाला पोर्शन वो है, यहां पे मैं जाकर के लिख लेता हूं 3B अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की मैं बना रहा हूं और 21-22 के अंदर मैं इसका टैक्स पेमेंट कर रहा हूं, 21-22 की बना रहा हूं
और टैक्स पेड मैंने पेड 21-22 के अंदर किया है, तो वो टेबल नंबर 4 और 5 में जाएगा। 5 तो चलो एग्जम्प्टेड सप्लाई है, वो मेरा टेबल नंबर 4 में इंफॉर्मेशन जाएगी। और मेरा फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अगर 3B है, इसका टैक्स पेड मैंने 22-23 में किया है, तो वो टेबल नंबर 10 में जाएगा। अगर मैंने टैक्स पेड ज्यादा कर दिया तो वो टेबल नंबर 11 में चला जाएगा। ये सारी टेबल फाइनेंशियल ईयर 17-18 से मैंडेटरी। आपको डेटा 1 से पिक नहीं करना, 3B से डेटा पिक करते हुए, अगेन मैं उसमें पहुंचता हूं अपनी पीडीएफ की शीट में। 3B से डेटा पिक करते हुए, 3B से डेटा पिक करते हुए मुझे क्लासिफिकेशन किसकी करनी है? B2C और B2। ये क्लासिफिकेशन आपको कहां मिलेगी? आपकी बुक्स के अंदर, जो आपने सप्लाई किस तरीके से एंट्री पास करी है, वहां से जाकर के डेटा को आपको पुट करना। आपने अगर कहा कि मैंने 1 से पिक कर लूंगा, बट हो सकता है ना कि 1 में जो डेटा गया हो उसका टैक्स पेड आपने अगले साल किया, उसका टैक्स पेड आपने किया ही नहीं हो, तो टेबल 4 में आ जाएगा। बट अगर उसका टैक्स आपने अगले साल पे किया हो तो टेबल नंबर 10 में जाएगा, वो 4 में नहीं जाएगा। इसलिए वो कहता है कि डिटेल्स ऑन विच टैक्स इज पेबल as declared in the return filed during the financial year। फाइनेंशियल ईयर का मतलब यहाँ पे 21-22, फाइनेंशियल ईयर का मतलब यहाँ पे 21-22। आपने जो भी सप्लाई, उसका जो टैक्स पेड आपने डिक्लेयर किया है उस साल की रिटर्न के अंदर, वो जाएगा टेबल नंबर 4 के अंदर। टेबल नंबर 4A से लेकर के 4G आपका है मैंडेटरी। 4I से 4L, हाँ जी, पहले आप फिल करते थे, किसी का जवाब? ये पहले ऑप्शनल था, मैंडेटरी था? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, B2B से रिलेटेड। क्योंकि आपको B2C से जो भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट होंगे वो आपको टेबल नंबर 4A में ही लेके जाने, बट जो B2B से रिलेटेड है वो आपको यहां लेकर के जाने होंगे। हाँ जी, क्या ये टेबल आप फील्ड करते थे? बताइए। ये तो 5th ईयर की एनुअल रिटर्न जा रही है आपकी। ये टेबल पहले, ये टेबल पहले, ये टेबल पहले ऑप्शन थे, मैंडेटरी थे? सर हमें तो पता ही नहीं। 1 से जो डेटा पिक हो गया उसको हमने B2C में डाल दिया, उसको B2B में डाल दिया, फिर वो जाने और उसका काम जाने। पहले ये टेबल ऑप्शनल थी, 21-22 ऑनवर्ड अब ये टेबल मैंडेटरी है। सर ऐसे कैसे है? अगर मैं नहीं डालूं तो इसमें ये मैंडेटरी तो लेगा ही नहीं, पोर्टल पे मैंडेटरी। हाँ जी सर जी, मुजतबाजू जी, आपने 9 फाइल करी है, उसमें ये टेबल मैंडेटरी थी या नहीं थी? वो तो कुछ कहता ही नहीं। सर क्रेडिट नोट इशू नहीं हुआ था। अरे मान के चलो क्रेडिट नोट अगर इशू हो, ये डेबिट नोट आपने किया हो, या 1 लाख की वैल्यू को आपने 10 लाख अमेंडमेंट अगर कर दी होगी, उसकी अमेंडमेंट आपने करी होगी, मान के चलो आपका एक साफ सुथरा केस था, बट अगर कहीं अमेंडमेंट होगी तो टेबल GST 9 आपको कहेगा भी नहीं। बट कहीं ना कहीं एज पर द नोटिफिकेशन 14/2022 दिस टेबल इज नाउ मैंडेटरी।
सर व्हाट अबाउट ऑटोफिल डेटा, जो ऑटोफिल डेटा हमें आता है 9 में, सर जो ऑटोफिल्ड जो डेटा है ना, वो ये तो मान के जीएसटीआर चलता है 1 की कि पुलिंग आती है सारी। वो ये मान के चलता है कि आपने बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ करके अपना जो टैक्स है ना वो पे कर दिया। आपने जो 1 में डेटा जो दिया ना, वो 3B में भी आपने सही दिया। सही डेटा क्या? दिया। बट क्या ये 99% सही नहीं Yes, sir. ऐसा एक भी जीएसटी आयन बता दो जिसकी 3B सही हो, जिसका 1 सही हो और जिसकी 9 सही गई हो। देयर इज, क्योंकि वही बात है जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे सर, ट्रांजिशन फेज। बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है, जब तक उसके लगे नहीं ना तब तक वो बच्चा छोटे से बड़ा नहीं। जब तक इश्यूज नहीं आएंगे, जब तक एरर्स नहीं होंगी, जब तक गलत नहीं फाइल होगा, तब तक सही पता नहीं चलेगा क्या है। सही फाइल होगा नहीं। पहली बार जब किसी ने खाना बनाया होगा तो जला हुआ ही हुआ होगा। धीरे धीरे करके वो सीखेगा, तभी तो सही परफेक्शन मिलेगी। सो द अल्टीमेट पर्पस इज 4A to 4G is mandatory, 4I to 4L is again mandatory field in table number 4, right? 4M जिस सप्लाई के ऊपर आपने टैक्स पेड कब किया होगा, इन सप्लाई के ऊपर आपने टैक्स पेड कब किया होगा 21-22 का? हाँ जी 4M। इन सप्लाईज के ऊपर आपने टैक्स पेड कब किया होगा? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22, नॉट 22-23। अच्छा ऐसा भी हो सकता है मुस्तफा जी कि मेरा जो डेटा 21-22 के अंदर है उसके अंदर 20-21 की भी ट्रांजैक्शन आ रही होगी। हो सकता है। It is possible. So you have to pick कि मेरा 21-22 से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या है, वो मुझे टेबल नंबर 4 में पुट कर। जैसे हम टेबल नंबर 6 करते हैं, ध्यान होगा आपको, आगे जाकर के टेबल नंबर 6 आएगा। अब आईटीसी जो होगा वो पिछले साल का भी तो आ रहा होगा, आ रहा होगा ना। जी जी। ऐसा भी हो सकता है जो ओ माय गॉड 10,000 का 1 लाख भी ले लिया होगा, हो सकता है, हो सकता है। तो वो भी आ रहा होगा। बट आपको बाइफर्केशन 6B से 6H किसकी करनी है? फाइनेंशियल ईयर 21-22। हर साल एक दूसरे से अलग है। जिस साल की एनुअल रिटर्न है उस साल की ही ट्रांजैक्शन उसके अंदर फाइल्ड होंगी। सो 4N का मतलब ये वो सप्लाईज हैं, वो एडवांसेस हैं, वो रिवर्स चार्ज की सप्लाई है जिसके ऊपर टैक्स आपने 21-22 का 21-22 में पे किया होगा। टेबल नंबर 5, जिसके ऊपर आपने टैक्स पेड नहीं करना। ऐसी कौन सी सप्लाई है जिसके ऊपर टैक्स पेड नहीं करना? मेरी एग्जम्प्टेड सप्लाई है, मेरी नील रेटेड सप्लाई है, मेरी नॉन जीएसटी सप्लाई है, और मेरी एक्सपोर्ट की सप्लाई है, और मैं किसी एसईजेड को सप्लाई करता हूं। वो टेबल नंबर 5C में कौन सी सप्लाई जाएंगी? आरसीएम। मैं रेस्टोरेंट वाला हूं, सेल थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यस, वो यहां जाएगी। मैं एक रेस्टोरेंट वाला हूं, आप आए, खाना खाया, चले गए, उसके ऊपर जो टैक्स पेड किया वो 5C में जाएगा? नो, नो, वो जाएगा 4AB।
ए बी। ठीक है। अब बी में तो क्या होगा, बी में तो वो तो बोलेगा भाई छोड़ दे भाई, जीएसटीएन तो मेरा नंबर छोड़ दो, 17.5 में ऑलरेडी ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक रेट। So, supply on which tax is to be paid by the recipient on the reverse charge basis, वो यहां जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं ड्राइवर हूं, ओला उबर की गाड़ी चलाता हूं, मेरी सप्लाईज कहां जाएगी? अच्छा, ये जो ड्राइवर है, ड्राइवर सर्विस प्रोवाइडर हो गया ना जी। ड्राइवर सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ओला उबर एक एग्रीगेटर है, एक एग्रीगेटर है, कस्टमर रिसिपिएंट हो गया। इसमें टैक्स पेड कौन करेगा? कस्टमर तो पे करेगा ही, बट who is taxpayer in these transactions? Ola. Who is Ola? एग्रीगेटर, ई-कॉमर्स ऑपरेटर। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना सर कि मैं Amazon और Myntra वगैरह की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के अंदर ड्राइवर को रजिस्ट्रेशन करवाना डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए हमने क्या बोल दिया, पकड़ना किसको इजी है? ओला उबर। एग्रीगेटर भैया ओला उबर को ही पकड़ लेते हैं, उन्हीं को ही बोल देते हैं भाई रिवर्स चार्ज आप पे कर दो इसके ऊपर। तो ड्राइवर अगर उसके पास जीएसटी नंबर है, उसकी जो अदर देन दीज सर्विसेज टैक्सेबल सप्लाई है वो जाएगी 4A में, और ये जो सर्विस जो ड्राइवर सर्विस दे रहा है वो जाएगी 5C में। डी। अब ये जो ट्रांजैक्शन थी ये मैंडेटरी ट्रांजैक्शन थी, बट वो कहता था कि आप ना इसको ना एग्जेम्प्टेड में डाल दो, सारी की सारी सप्लाई आप डाल सकते हो। ठीक है, पहले ये था। अब कहता है 14/2022 कहता है, ये 14/2022 बार बार क्या आ रहा है नोटिफिकेशन। वो कहता है कि नॉन जीएसटी सप्लाई आप अलग से, नॉन जीएसटी सप्लाई आप, अरे नॉन जीएसटी सप्लाई क्या होता है सर, कोई मुझे बताएगा? Petrol extra. ओके लिकर, ओके। टोबैको, टोबैको नहीं, टोबैको पे तो वो तो जीएसटी सप्लाई है, उस पे तो सेस भी लगता है। बिल्कुल ठीक। ये लोग कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। व्हाट इज द पर्पस कि नॉन जीएसटी सप्लाई आप अलग दिखाओ, एग्जेम्प्टेड अलग दिखाओ? देयर इज अ रूल 42 एंड 43। वो क्या कहता है कि आपने जो ऐसा आईटीसी, कॉमन आईटीसी मान के चलो 100 रुपए का आईटीसी है, वो आपने पेट्रोल के लिए भी लिया और लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए भी लिया। हाँ जी, लुब्रिकेटिंग ऑयल इज टैक्सेबल सप्लाई, यस, एंड पेट्रोल इज नॉन जीएसटी सप्लाई। आपने जो ऐसा आईटीसी लिया वो दोनों पर्पस के लिए लिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए भी और पेट्रोल के लिए भी। बट रूल 42-43 कहता है, मतलब एक कैपिटल गुड्स के बारे में कहता है, एक एग्जेम्प्टेड सर्विस के बारे में कहता है कि आपने कोई ऐसा आईटीसी अपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज किया तो वो आईटीसी, प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल करना। तो सरकार का ये माइंडसेट है कि कहीं ना कहीं मैं आपकी ना एनुअल रिटर्न से ही पता लगा, क्योंकि टेबल नंबर 4 आपकी टैक्सेबल सप्लाई, टेबल नंबर 5 में एक्सपोर्ट सप्लाई ऊपर दिखा दिया, एग्जेम्प्टेड सप्लाई नीचे दिखा दिया, नॉन जीएसटी सप्लाई उसके नीचे दिखा दिया। अब मैं किसको पिक कर लूंगा? प्रोपोर्शनेट के लिए टेबल नंबर 5D को उठा लूंगा, और उसके बेस पे आपका जो टेबल नंबर 6 के अंदर जो आईटीसी आ रहा है ना, उसका मैं वहां पे
रिवर्स कैलकुलेशन लगाते हुए उसका रिवर्सल। पहले ये मैंडेटरी नहीं था, 21-22 से ट्रांजैक्शन मैंडेटरी है। कि पहले क्या होता था, वो कहता था 5D में डाल दो सारा उठा के, नहीं, आपको 5F में मैंडेटरी है इसको डालना। आप चाहो तो एग्जेम्प्टेड और रिलेटेड को 5D में डाल दो, क्योंकि वो इट इज इररिलेवेंट ट्रांजैक्शन कि एग्जेम्प्टेड और रिलेटेड तो एक ही बात हो गई ना, है ना, तो उसके अंदर मैं उसको क्लासिफाई कर दूं। सिमिलरली ये ट्रांजैक्शन अभी मैंडेटरी नहीं है, तो टेबल नंबर 4 और 5 आपकी हुई किस चीज से रिलेटेड, exempted non GST सॉरी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड। टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 6 आईटीसी। अब पूरा जीएसटी आईटीसी में समाया हुआ है। क्या ये आप फिल करते थे सारी चीज, टेबल नंबर 6A से 6G? पहले क्या था, शुरू में जब पहले 2 साल की बात आई ना, तो वो कहते थे कि आप इनवर्ड सप्लाई को ना एक में दिखाओ और इन सर्विसेज को आप इनपुट में दिखा दो। अब पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है कि आपको कैपिटल गुड्स की बाइफरकेशन अलग से दिखा, कैपिटल गुड्स की बाइफरकेशन अलग से दिखानी है। इनपुट और इनपुट सर्विस आप इनपुट में डाल सकते। ये आपकी वो सप्लाई है अदर देन रिवर्स चार्ज, ये आपकी रिवर्स चार्ज की सप्लाई, ये आपकी रिवर्स चार्ज की सप्लाई, ये आपकी इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी, ये आपके इंपोर्ट ऑफ सर्विस का आईटीसी, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम आईएसडी। ये चीजें आपको डालने की जरूरत मैंडेटरी नहीं कहता। मैंडेटरी आप वही बात को ध्यान में रखोगे जो आपने 20-21 में भी फाइल किया होगा कि कैपिटल गुड्स की ट्रांजैक्शन को आपको अलग से दिखाना है। बाकी सब चीजों का आप इनपुट में दिखा सकते। अच्छा, ये टेबल नंबर 6 से जो आ रहा होगा वो कहां से आ रहा होगा? 3B ऑफ FY21। अब वही बात हम कर रहे थे ना मुस्तफा जी कि टेबल नंबर 6A के अंदर फिगर जो आ रही होगी वो हो सकता है 20-21 की भी आ रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपए का आईटीसी मैंने 1000 रुपए का लिया, राइट। अब 6B से 6H की क्लासिफिकेशन मैं कौन सी करूं, करंट फाइनेंशियल ईयर, राइट। इंस्ट्रक्शंस भी यही कहती है, कहीं ना कहीं समझने का भी फर्क है। बहुत सारे जो ओपिनियन है वो कहते हैं कि ऊपर वाले की कर दो। अरे ऊपर वाला भी तो तभी करेगा जब नीचे वाले सहायता करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि ये बात करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बट आपको 6B से 6H की क्लासिफिकेशन आपको करनी है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड। ऐसा क्यों? नेक्स्ट टेबल पे पहुंच के दिखाना चाहूंगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। टेबल नंबर 7 मेरा रिवर्सल का कॉलम, एक कॉलम है यहाँ पे जाकर के 7J, बहुत ध्यान से देखिएगा। कहता है नेट आईटीसी अवेलेबल। टेबल 6O -7I, मतलब क्या हुआ? 6O कैसे बन रहा है? टोटल आईटीसी माइनस 6B से पिक करता हुआ बन रहा है, 6B से 6H और
ये मिला करके बना 6O, और 7 क्या है, रिवर्सल। 6O माइनस 7I का मतलब मुझे इतना ITC मिलना है आफ्टर रिवर्सल इस साल का। ये फिगर कहाँ खो जाती है, ये फिगर कहाँ खो जाती है, ये फिगर कहाँ जाती है? इस फिगर के बहुत मायने हैं, इस फिगर की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस फिगर के ऊपर टेबल नंबर 12 ऑफ 9C टिका हुआ है। टेबल नंबर 12 ए कहता है बुक्स का ITC, 9C की बात कर रहा हूं, उसमें से प्लस माइनस कर लो, पिछले साल का इस साल लिया, इस साल का अगले साल लिया, फिर मेरा क्या आता है, जो मेरे इस साल का ITC, जो मेरे इस साल का बुक्स का ITC है, बुक्स का ITC। 9 कौन सा ITC कहता है, 3B। तो मैंने 3B में लिया, जो मैंने 3B में लिया। 3B में लिया। टेबल नंबर 4 कौन सा आउटवर्ड सप्लाई कहता है, जो मैंने 3B में लिया। हर टेबल, ईच एंड एवरी टेबल इन GST 9 इज टेलिंग एवरी बेसिस, डेली बेसिस कि 9 के अंदर 3B, 9 के अंदर 3B, 3B की ही सप्लाई, 3B का ही टैक्स, 3B का ही ITC। तो 9 तो पूरा 3B से ही बना हुआ। और 9C का मतलब क्या है, बुक्स वर्सेस 3B, या मैं आई कैन से बुक्स वर्सेस 9। तो बुक्स का जो ITC होगा वो आपको मैच करना है किससे, 6O माइनस 7I से। और अगर आपने 6O के अंदर ये फिगर ऊपर की पुट कर दी तो वो मैच होगा। देखो मैच करने के लिए नहीं बैठे हम, वहां पे रिकंसिलिएशन करने के लिए बैठे कि भैया इस साल का मैंने जो ITC बुक्स में ले रखा है 100 रुपए का, उतना ही मैंने 3B में लिया। और अगर 100 रुपए का ITC मैंने 80 रुपए ले रखा है और 20 रुपए अगले साल ले रखा है, तो कहां कहां जाएगा, 80 रुपए जाएगा 6B में, 80 रुपीज, और 20 रुपीज कहां जाएगा, 8C। 8C, 8C एंड 13, 8C एंड 13। मूविंग, हाँ जी, टेबल नंबर 7 रिवर्सल कहता है कि आप छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो और छोड़ दो। आपको कहां डालना है सारा डेटा, अदर रिवर्सल 7H, पर ट्रांजिशन क्रेडिट आपको यहां डालने जरूरी है। विंडो खुली है ना इस साल, वो तो इस साल खुली है, अगले साल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 6O माइनस 7I मेरा इस साल का ITC। 8A सारी ट्रांजैक्शन मैंडेटरी है, 8A 8B 8C, जो 8D आएगा अब उसके बारे में 8E और 8F में बता दो भैया मेरा ITC अवेलेबल है या इनएलिजिबल है। बाकी सारी ट्रांजैक्शन आपकी क्या है, ऑप्शनल है। टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 9 पिक होता है किससे, टेबल नंबर 9 किससे पिक होता है, मैडम कह रही 3B 3B डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड। यस, 3B की ऑफसेट समरी से, करेक्ट। 3B की ऑफसेट समरी से ये डेटा पिक होता है। कौन सा डेटा, कि मैंने कैश में कितना पे किया और ITC से थ्रू कितना पे किया। ये टैक्स पेबल कहां से आता है, ये टैक्स पेबल कहां से आता है, 3B से ही आएगा सर 3B से आएगा टैक्स पेड। Here
अच्छा इस पेबल तो हमारी जो कैलकुलेशंस हमने 4 to यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब देखिए 100 रुपीज का टैक्स मैंने 80 रुपीज ही पे किया है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 20 पेबल दिखाएगा। यहाँ पे 100 ही दिखाएगा, इस कॉलम में 100 ही दिखाना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे टैक्स पेड तो 100 ही करना है ना। टैक्स पेबल कितना 100, बट टैक्स पेड कितना 80। तो 20 रुपीज का यहाँ पे क्या दिखाएगा? रो नंबर 2 -3 -4 to 7 क्या दिखाएगा? 20 रुपीज दिखाएगा। इस 20 रुपीज की आप करोगे DRC 03, और ये 100 रुपीज कहां से पिक होगा? वो पिक तो करेगा नहीं। यस मैम, ओके। अब ये ऑटो नहीं होगा, आपको यहाँ पे फिगर पुट करनी पड़ेगी, और फिगर जाएगी वो कहां से? सर मैम का कोई क्वेरी था शायद, आई थिंक शी गॉट म्यूटेड, अगर है तो म्यूट कर ले प्लीज। कोई क्वेरी होगी तो प्लीज नोट डाउन, हम 15 मिनट का समय लेते हुए उसको हम आगे क्लोज कर ठीक देंगे। है सर। सो वो टैक्स पेबल पिक होगा टेबल नंबर 4 से, राइट। अब मैं आता हूं अपने 9 के बाद। 10, 11, 12, 13 मैंडेटरी नहीं है, बट ये अगर आप फिल कर सको तो बहुत अच्छे से फिल करना, क्योंकि इसके मायने क्या है कि नेक्स्ट टैक्स पीरियड में मैंने कितना एडजस्टमेंट किया है उसकी फिगर यहाँ पे। टेबल नंबर 10 में आपकी और 11 में 10 और 11 में आपकी आती है आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, और 12 और 13 में आपकी आती है ITC से रिलेटेड डिटेल, जो आपने नेक्स्ट ईयर की अप्रैल टू सितंबर 22 की रिटर्न में लिया है। और ये सारे रिटर्न आपकी 30/11 से पहले फाइल होनी चाहिए, करेक्ट। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, क्विकली ले लेता हूं। इफ इट इज एग्जाम सेल फॉर FY 21-22 adjusted in next financial year returns, where should we report in financial year 21-22 annual 9 for taxable sale? There is 10-11 point। yes, बिल्कुल आप करेक्ट कह रहे हैं कि ये जो सप्लाईज है ये बिल्कुल टैक्स से रिलेटेड इफेक्ट के बारे में कह रहे हैं, राइट। एग्जेम्प्टेड सप्लाई को आपको टेबल नंबर 5 में भी एडजस्टमेंट करके वहां आपको क्लोज करनी। अदर इंफॉर्मेशन टेबल नंबर 14, 10 और 11 से डेटा पिक होगा। बहुत सारे मेंबर्स क्या करते हैं 10, 11, 12, 13 को लेकर के चल रहे थे और यहाँ पेबल और पेड दिखा देते। आपको सिर्फ पिक करना, कौन सा टेबल पिक करना है 14 के लिए? 10 और 11, राइट। 10 और 11 का इसका मतलब ये हुआ 10 - 11 जाएगा पेबल के अंदर, और आपने जो पेड किया वो यहाँ पे आ जाए। टेबल नंबर 15 अदर इंफॉर्मेशन ऑप्शनल, अभी ये मैंडेटरी नहीं हुआ है। टेबल नंबर 16 ऑप्शनल। टेबल नंबर 17, हाँ जी, टेबल नंबर 17 ये इस साल क्या होगा? मैंडेटरी क्यों होगा? क्योंकि ये मैंने आपको बहुत शुरू में ही कह भी दिया था कि HSN से रिलेटेड, यही कहा था, HSN समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आपको अपनी GSTR1 21-22 आप फाइल कर रहे हो। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो कितने डिजिट आप डाल रहे थे? 6 डिजिट। आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो कितनी डालोगे? 4 डिजिट। 4 डिजिट 6 डिजिट। इशू क्या आ रहा था GSTR 9 के अंदर?
वो कहता है मैं तो 8 ही डिजिट लूंगा, मैं तो 8 डिजिट लूंगा। तो उस केसेस में अभी इशू पेंडिंग है, कहीं कहीं रिजॉल्व हो गया है, कहीं वो इश्यूज अभी भी जारी चल रहा है। आपने अगर 1 के अंदर 4 डिजिट और 6 डिजिट का HSN कोड लिया है तो यहां भी वो उतनी ही डिजिट लेने के लिए कहे। टेबल नंबर 18 इनवर्ड सप्लाई अभी शुरू नहीं हुआ है, 22-23 ऑनवर्ड भी अभी नहीं आया है शुरू करने के लिए। टेबल नंबर 90 इज लेट फी पेबल एंड पेड। ठीक है, ये कितनी पर डे लगती है? CGST and SGST. 100, 200 पर डे। डिफॉल्ट कंटिन्यूज। यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो गए, यहाँ पे क्लोज होता है। मैं अपनी समरी में आता हूँ, जो मैंने समरी टू यू ऑल्सो कि जहां मेरा बोल्ड और इटैलिक है वहां वो कहता है कि मेरी ये टेबल अब मैंडेटरी। यही था कि मुझे अपनी नॉन जीएसटी सप्लाई के अंदर मुझे डेटा को पुट करना है। बाकी सारी टेबल जो थी वो चल रही हैं। टेबल नंबर 10-11 यहाँ पे आपको पुट करना है। आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल 12-13 ऑप्शनल अभी भी चल रहा है। टेबल नंबर 17 HSN कोड। तो हमने पूरा एक सिनेरियो भी देख लिया 9 का, और क्या टेबल ऑप्शनल है मैंडेटरी वो भी हमने देख लिया। एक क्विक क्वेरी ले लेता हूँ। प्लीज शेयर दिस विद होस्ट। ओके, विल शेयर माय ईच एंड एवरी फाइल इंक्लूडिंग PPT। सो 9C, हाँ जी, 9C में सिग्नेचर किसके होंगे? अब तो क्लाइंट के ही होंगे। अब तो क्लाइंट के। ये इस साल से हुए थे, पिछले साल से हो गए थे? पिछले साल से। पिछले साल से हो गए थे। एक मिनट, yes. So this is the 9C table, reconciliation statement 1, 2, 3, ठीक है, सेम थिंग। टेबल नंबर 5, रिकंसलेशन किसका? ग्रॉस टर्नओवर। हाँ जी, टेबल नंबर 5A, टेबल नंबर 5A में कहता हूं कश्मीर के अंदर मेरा 1.5 करोड़ का टर्नओवर और दिल्ली के अंदर 2 करोड़ का टर्नओवर, टोटल हो गया 3.5। पंजाब के अंदर 2 करोड़ का टर्नओवर 5.5 और 50 लाख का टर्नओवर वेस्ट बंगाल, टोटल 6 करोड़ का टर्नओवर। तो यहाँ पे कितना टर्नओवर आएगा 5A में? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? टोटल मेरा 5 ब्रांचेस का टोटल मैं कर दूंगा तो वो टोटल टर्नओवर मेरा हो गया 6 करोड़ का। तो मेरा 5A में कितना टर्नओवर आएगा? खतीब जी कह रहे हैं कंसोलिडेटेड। एनीवन? एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, इन केस आई पेड एक्सेस टैक्स ऑन सेल इन 3B बट करेक्ट इन GSTR 1, व्हाट कैन आई डू टू एडजस्ट एक्स्ट्रा टैक्स? दिस इज अ केस ऑफ अ प्रीवियस ईयर। अगर एक्सेस टैक्स आपने पेड कर दिया तो उसकी एडजस्टमेंट आप टेबल नंबर 11 में आप कर दो ताकि उसका बेनिफिट आपको अगले साल की एनुअल रिटर्न में मिल जाए। एक मेरे पास आंसर आ गया जो मैं सवाल पूछ रहा था 6 करोड़ का, द टर्नओवर पर्टेनिंग टू GSTR। करेक्ट। हाँ जी, पंजाब की GST रिटर्न फाइल करूंगा तो कितना आएगा? 1.5 करोड़। दिल्ली की करूंगा तो कितना आएगा? 2 करोड़। बंगाल की करूंगा तो कितना आएगा? 50 लाख। बट मेरा पैन इंडिया वाइज टर्नओवर 6 करोड़, तो इसलिए 9C मेरी सबकी जाएगी।
मेरा एक श्रीनगर में यूनिट 50 लाख, नहीं श्रीनगर में यूनिट ले लो 2.5 करोड़, एक जम्मू में यूनिट वो ले लो 3 करोड़, टोटल 5.5 करोड़। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 2 जीएसटीएन होंगे तो अलग अलग जिसका टर्नओवर हो, एक जीएसटीएन होगा तो दोनों का कंबाइंड इसके अंदर चला जाएगा। तो 5A का फिगर मैं कहां से लूंगा? 3B से। 5A का फिगर मैं कहां से लूंगा? 3B से, बुक से। बुक्स का कौन सा टर्नओवर लूंगा? एस बुक्स का for every GST I have to show sale of that particular GST in 9C and 9। हाँ जी, 5A के फिगर हम 10 मिनट का समय लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, फिर आपकी क्वेरी क्विकली ले लेंगे। 5A की फिगर कहां से पिक करूं खतीब जी? 5A की फिगर कहां से पिक करूं? GST 3B से, 1 से, कंप्यूटेशन से, सेल एज पर PL अकाउंट, सेल एज पर PL अकाउंट प्लस द टैक्सेस प्लस मेरी जो इनडायरेक्ट इनकम की टैक्सेबल सप्लाईज हैं वो यहाँ पे पुट होंगी। ऐसा गाइडेंस नोट ऑफ 9 and 9C ऑफ आवर इंस्टीट्यूट कहता है। ये सारी ट्रांजिशन जितनी भी लिखी है ना, ये सारी ऑप्शन। मान के चलो आपका 6 करोड़ का टर्नओवर, यहाँ पे लिखोगे 6 करोड़, ठीक है। ये सारी ट्रांजैक्शन आप कहां जाकर के लिख दोगे? टेबल नंबर 5O में। अनबिल्ड, बिल्ड, अनएडजस्टेड, एडवांसेस, ओपनिंग, क्लोजिंग, DTA, एडजस्टमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कहां चली जाएंगी? 5O। 5P कहां से आएगा? ऑटो लिखा है, ऑटो। ऑटो कहां से बनेगा ये? A-O, बिल्कुल ठीक। A+O या A-O, तो ऊपर का जितना भी टोटल है वो सारा बन करके क्या बनेगा? 5P। 5Q कहां से बनेगा? 5Q बोलो। एज पर एनुअल रिटर्न। अरे एनुअल रिटर्न की किसी टेबल से तो पिक होगा। (5N + 10 - 11). क्या इतना आपने पीछे किया होगा, देखा होगा? क्योंकि मैंने 10 और 11 क्यों लिखा? क्योंकि हो सकता है कि ऐसी सप्लाईज आपने नेक्स्ट टैक्स पीरियड, नेक्स्ट ईयर के टैक्स पीरियड में ले ली होगी। मान के चलो कि 100 रुपए का टैक्स, 100 रुपए में से 80 रुपए आपने, और उसके ऊपर जो टैक्स है वो आपने 21-22 में पे किया। 80 रुपए यहाँ आ गया और 20 रुपए चला जाएगा 10 में, तो दोनों को जोड़ूंगा तभी तो 100 रुपए बनेगा, तभी तो ये मेरी बुक से मैच होगा। तो 5N + 10 - 11 = टेबल नंबर 5Q ऑफ 9C। डिफरेंस आपका आ जाएगा, उसके बारे में बताओ। रिकंसिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, ऊपर से टैक्सेबल टर्नओवर आ गई, ठीक है। बाकी जीरो रेटेड वगैरह ये सब लेस हो जाएगा, मेरा टैक्सेबल टर्नओवर आ जाएगी। टैक्सेबल टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन दी एनुअल रिटर्न, जो मेरा 9 में गया है। टैक्सेबल टर्नओवर ये कहां से पिक होगा? ऑब्वियसली बात है वहीं से होगा, टेबल नंबर 4 से बनेगा, ठीक है। अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर, यहाँ पे सिर्फ एक टेबल, यही जो पिछले साल थी ना, वही यहाँ पे ऑप्शनल है, बाकी इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। टेबल नंबर 9 आपको डालना ही डालना है। रेट वाइज समरी आपको डालनी पड़ेगी। टोटल कितने रेट आ रहे हैं? 5, 12, 18, 28, 3, 0.25 और 0.1, ठीक है। ये आ गया टेबल नंबर 12।
ये आपको मैंडेटरी बोला है इसको फिल करने के लिए। पिछले साल का आईटीसी इस साल ले रहे हो, इस साल का आईटीसी अगले साल लोगे, और आपको ये टेबल नंबर 12E कहां से बनेगा? टेबल नंबर 12E कहां से बनेगा? कौन सी टेबल 9 से बनेगा? ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे 6O माइनस 7I से। टेबल नंबर 14 अभी भी क्या है? ऑप्शनल। बट यहाँ पे जाकर के आपको एक्सपेंस की डिटेल यहाँ पे लिखनी पड़ेगी ताकि ये यहाँ पे मैच हो जाए। 16 ऑडिटर रिकमेंडेशन ये तो अब है नहीं, ठीक है, तो जो भी आपका है सिग्नेचर वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 99C पूरा यहाँ पे रीड कर लिया। अगर आपकी कोई इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी, आई एम हैप्पी टू रिजॉल्व इट। कोई क्वेरी आपकी, मेरा टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मैं शेयर कर दूंगा खतीब जी को, डिप्टी कन्वीनर साहब को, वो आपको शेयर कर देंगे मेरी पीपीटी और ये दोनों ट्रांजैक्शन डिटेल वगैरह। एक क्वेरी थी सर। यस ऑल्दो मेरे को नहीं पता, शायद आपने जवाब दिया हो। जी। जैसे मेरे 2 जीएसटी हैं। 2 जीएसटी आए हैं। एक में मेरी सेल्स टर्नओवर मान के चले 10 करोड़ हो गई है, ओके और दूसरे में टोटल निल है। ओके ठीक है, तो अब तो मैं एग्रीगेट पैन बेसिस पे देखूंगा ना मैं, तो जीएसटीआर 9 तो भरना ही पड़ेगा कंपलसरीली। 9 दूसरी से जो भी निल करना वाला है पड़ेगा। 9C भी भरना पड़ेगा ना, यही मेरे को पूछना था। राइट, दोनों करने। ओके। मैंने पीछे एक केस वो एक डिस्कस कर रहा था कि अप्रैल में जब गया तो मैंने देखा टोटल 8 ब्रांचेज में एक ब्रांच का टर्नओवर टोटल 10 करोड़ में से 9.5 करोड़ का। बाकी जितनी भी ब्रांचेस थी टोटल 7 ब्रांचेस, उनका टर्नओवर 50 लाख का। तो उन अकाउंटेंट बोलता हूं, उन अकाउंटेंट्स ने क्या किया कि 17-18 ऑनवर्ड्स टिल 20-21 ये 7 ब्रांचेस की 9 फाइल करी, बट 9C फाइल नहीं करी, या किसी केस में 9 भी फाइल नहीं करी। तो कोई पूछने थोड़ी आ रहा है कि 9 फाइल करनी है या नहीं करनी, मैंडेटरी कहीं वो भी नहीं बताता। ऑल्सो 9 की पेनल्टी लग रही होगी, लेट फी। 9C में है नहीं तो उसमें जनरल पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये चीजें हमें ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो फिर डिपार्टमेंट अपना ऑडिट तो स्टार्ट करेगा ही। किसमें करेगा? आपने एक फॉर्म तो सीख लिया आज, ADT 1। किसी की अगर 9C पेंडिंग है, मतलब जनवरी बन रहा था, उसका टर्नओवर अच्छा खासा था, अब अभी मान लीजिए भरने का चाहे तो व्हाट शुड ही डू? आपकी सजेशन क्या? 9C देखो, एक होता है कि आपको ये फाइल करना जरूरी है, एक होता है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल तो कहीं लिखा नहीं, तो नॉन कंप्लायंस इज इटसेल्फ अ क्राइम, बेटर टू फाइल इट, पे द पेनल्टी। क्योंकि लग तो नहीं रही उसमें, 9C में लगेगी तो नहीं, वो वैसे ही फाइल हो जाएगा, लगेगी तो जनरल पेनल्टी लगेगी। इट्स अप टू द डिस्क्रिप्शन, बट मैं ऑलवेज बिलीव दैट यू हैव टू, आपको अपने कंप्लायंसेस टाइमली नहीं तो कंप्लाई तो करने ही चाहिए। जैसे 148 आता, भाई आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, 142 आता, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आपको वो आपको दे रहे ना, आप फाइल करो, फिर हम बताएंगे आपको कि आपकी कहाँ दिक्कत आपने करी है। members, any more queries please? Then you can check, unmute yourself, या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप।
हेलो सर। यस सर बताइए। सर अगर हमारी पिछले साल की कोई एडजस्टमेंट हमने करंट में करी है तो करंट के 21-22 के एनुअल में उसका क्या सिनेरियो रहेगा? उसका सिनेरियो ये रहेगा, अगर आपकी ये आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है जी और उसका टैक्स आपने 22-23 में पे किया है। नहीं सर, 21-22 में पे किया हुआ है पिछले साल का फाइनेंशियल 20-21 का। अच्छा 20-21 का हाँ, अगर 21-22 में पे किया अगर हुआ है 21-22 में पे किया है जी तो देखो टेबल नंबर 9 तो आपका टैक्स पेड तो पूरा उठा लेगा, जी, वो बट तो लेगा, आपको पूरा वो उठा 3B लेगा का भी ले मतलब, हाँ क्योंकि वो 20-21 का भी लेगा और 21-22 का भी 21-22 लेगा। का भी। हाँ आपको टेबल नंबर 9 का टैक्स पेबल चेंज करना पड़ेगा। ओके, अगर 1 में रिपोर्ट की होगी तो ये तो 9-1 से आ रहा है ना? 9 तो 1 से पिक इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ये उसकी ये बिलीफ है कि 1 और 3 भी सेम डेटा जा रहा है, हम्म, और अब उसमें 1 से इसलिए भी पिक कर रहा है क्योंकि B2C और B2B 1 से ही मिलेगा। जी बट अगर 3B अलग चल रहा है रहा, 1 अलग चल रहा है रहा, तो पिक तो आपको 3B करना है और उसकी बाइफर्केशन आपको B2C और B2B। 1 तो मेरी तो मान लीजिए सर 20-21 की कोई B2B थी मेरी, तो B2B भी तो मैंने रिपोर्ट कर दी, GSTR 1 में तो रिपोर्ट कर दी और 3B मैंने उसका टैक्स पे किया, लेकिन अब तो एनुअल में वो 1 में भी आएगी और 3B में भी। तो 1 तो तो जो 1 9 से डेटा 3B में 1 से डेटा जो 9 में जा रहा है ना, उस फिगर को 20-21 की फिगर को वहां से घटाना पड़ेगा, लेस करना, ओके, क्योंकि आपको 21-22 की ट्रांजैक्शन को टेबल नंबर 4 में पुट करना है। तो 9 की लायबिलिटी जो मेरी फिर जनरेट होगी 9 में, तो वो तो फिर मैच नहीं मैंने करेगी। मैंने आपको यही कहा कि 9 की लायबिलिटी, जो टेबल नंबर 9 की लायबिलिटी टेबल नंबर 9 में आ रही है, पेड तो ऑटो चल रहा है, पेड तो टेबल 3B के आपको थ्रू कम किया, करना पड़ेगा। पेबल कम करना पड़ेगा, फिर वो मिसमैच खाएगा 3B के साथ। मिसमैच आएगा, अनरिकंसाइल आएगा, पेमेंट वहां पे जाकर के आप लिख देना कि 20-21 का मैंने 21-22 में पे किया। ओके, थैंक यू सर। आई वॉन्ट टू रिपीट वन, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। जो आपने बताया कि एक पैन सपोजिंगली एक पैन के 2 GST नंबर है, yes, तो one has a turnover of 7 CR and the other PAN is other Okay. GST number we are filing continuously nil returns. okay. तो उसके बाद जो जिसकी nil returns फाइल हो रही हैं उसका 9 भी जाएगा, 9C भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा मैम, 9 तो nil ही जाएगा। 9 नील जाएगा, लेट फी लग के जाएगा। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट ईयर, अभी तो नहीं लगेगा ना, अभी तो 9 टाइम है। जाएगा मैम, 9 जाएगा, और क्योंकि 9 पैन इंडिया वाइज देखना, और तो 9C में भी तो ऐसा कोई भी डेटा नहीं जाएगा ना? कोई भी डेटा नहीं जाएगा। अब बट इट आप इज जस्ट, पूछोगे तो उसमें अटैचमेंट क्या लगाऊं? हाँ एग्जैक्टली वही जो उसकी मेन बैलेंस शीट है वही अटैचमेंट अटैच लग मेन जाएगी। बैलेंस शीट भी आप लगा सकते हो या उसका ट्रायल बैलेंस बना करके, क्योंकि वो ब्लैंक होगा, उसको भी साइन करके अटैचमेंट आप लगा दो। या फिर जो कंबाइंड बैलेंस शीट जाती है वी कैन कंबाइंड बैलेंस अटैच शीट दैट। कंसोलिडेटेड करके आपने अगर ब्रांचेस बनाई होगी तो उस ब्रांचेस का डेटा निल होगा, वो डेटा आप पेस्ट कर दो। ठीक है, थैंक यू। सर आई थिंक और क्वेरीज अगर होंगी भी तो फिर हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, एनी टाइम माय नंबर इज गिवन। बिल्कुल सर, वो टेलीग्राम वाला भी हम अपने ग्रुप में वो शेयर कर लेंगे सो दैट पार्टिसिपेंट्स में ज्वाइन दैट एज वेल। श्योर प्रदीप जी। ठीक है ना सर? जी। सो शैल वी कंक्लूड द सेशन देन? आपकी मर्जी है। देखो 99C पूरा एक एक टेबल आई हैव एक्सप्लेन अबाउट कि कौन सी टेबल में क्या ट्रांजैक्शन। बाकी मैं आपको ये जो 3 पेज का जो वर्ड फाइल है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। मेंबर्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जिस टेबल जो मैंडेटरी है वो चीजें हमें पिक करनी पड़ेगी। सर अच्छा एक और चीज एक लास्टली पूछ लेते हैं, जो ये अमेंडमेंट वाला हमारे पास ऑप्शन होता है जी, लास्ट ईयर की अमेंडमेंट विजन, अगर अभी हम मतलब रिकंसाइल कर रहे हैं और अभी मान लीजिए सितंबर से या जो अब एक्सटेंड, एक बार वो भी बता दीजिएगा नवंबर का जो डेट है फॉर आईटीसी एंड उसका। एक्चुअली वो कहता है, कंफ्यूजिंग इस तरीके से है
पहले क्या होता था, वो कहता था सितंबर मंथ तक आप करो, ठीक है, सितंबर मंथ की ड्यू डेट कहता था, बहुत ध्यान से सुनना, सितंबर मंथ की ड्यू डेट होती है 20 अक्टूबर 2022, ठीक है। पीछे नोटिफाइड हुआ, पिछले लास्ट ईयर बजट में भी यही आया था कि अब 30 सितंबर को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, अमेंडमेंट नहीं हो पाती, तो हम क्या करते हैं, इसको 30 सितंबर ड्यू डेट से हम ये लिख देते हैं 30/11। वहां पे 30/11 ड्यू डेट नहीं लिखी, वहां पे डेट लिखी है 30/11। 30/11 का मतलब आप 30/11 से पहले आ जाओ, 1 में अमेंडमेंट कर लो, 3B में अमेंडमेंट कर लो, तो आप पिछले साल की अमेंडमेंट आप कर सकते हो। तो जो भी 30/11 से पहले जितनी भी रिटर्न्स फाइल होंगी, उनके अंदर अगर आपने अमेंडमेंट कर ली होगी, तो तभी 21-22 की अमेंडमेंट हो सकेगी। सर हेलो सर जी सर इन केस अगर अमेंडमेंट में कोई गलती होती है तो उसके लिए हम वहाँ कहाँ किस जगह रेक्टिफाई करें 9 में, या अगर अमेंडमेंट फॉर एग्जांपल मार्च का मुझे सेल मैंने नील डाली थी B2C में, फिर मैंने अमेंडमेंट करके 9 में सेल एक्स्ट्रा डाली, तो वो हम कैसे ठीक करें सर? अमेंडमेंट में मैंने गलती कर दी सर, तो वो कैसे ठीक होगा सर? उसका जो एक्स्ट्रा टैक्स आपने 3B के अंदर सप्लाई गलत डाली नहीं, 3B नहीं सर, एक्चुअली जो मतलब मैंने GSTR 1 B2C नील भरी थी मार्च की, से फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर की, ठीक है, तो जब मैंने अमेंड की बिफोर नवंबर 30 नवंबर, तो मैंने उसमें क्या, मैंने 5 लाख सेल डालनी थी, मैंने 10 लाख सेल डाल दी और एक्स्ट्रा टैक्स भी पे कर दिया। ओके, तो उसके लिए जो मैंने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है उसका बेनिफिट मैं कैसे ले सकता हूँ सर? उसका बेनिफिट आपको, जो आपने टैक्स पेड किया उसका बेनिफिट आपको टेबल नंबर, देखो एक्स्ट्रा टैक्स थोड़ी था, वो तो आपका एक्चुअल टैक्स था, आई थिंक सो। 5 लाख की सेल दिखानी थी, मैंने 10 लाख की दिखाई, या ज्यादा दिखा दी, जी 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 एक्सेस दिखा दिया, एक्सेस, नॉर्मल से एक्सेस दिखा दिया आपने। यस सर। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि 5 लाख की सेल थी, आपने 10 लाख दिखा दी, तो 5 लाख का एक्सेस दिखा दिया। ये जो 5 लाख का जो आपने एक्सेस दिखा दिया, इसका बेनिफिट आप नेक्स्ट टैक्स पीरियड या नेक्स्ट ईयर लेना चाहते हो, क्योंकि नेक्स्ट टैक्स पीरियड भी तो लोगे ना बेनिफिट इसका, ये जो आपने टैक्स पेड किया उसका रिफंड लोगे या उसका बेनिफिट लोगे? यस सर। तो इंस्टेड टू इनिशिएट द रिफंड, क्योंकि रिफंड लेना आसान नहीं है, बेटर टू एडजस्ट विद नेक्स्ट टैक्स पीरियड। मान के चलो आपने अप्रैल में उसकी एडजस्टमेंट कर दी, तो आप मई में जब आप कोई रिटर्न फाइल करोगे या आज नवंबर में जो आप रिटर्न फाइल करोगे, तो उतना अमाउंट लेस करके आप एडजस्टमेंट कर देना, और GSTR 9 का 21-22 की जो एनुअल रिटर्न होगी उसका टेबल नंबर 11 में और 14 में माइनस करके दिखा। टेबल नंबर 11 और 14, ओके सर, थैंक यू सर। All right, sir. I think we should conclude the session now. Yeah, Thank sure. you very much for your valuable time. It was a great session, and we actually learned a lot. Thank you very much, sir. हम आपको जरूर फिर से आमंत्रित करेंगे। Yeah, sure, Khatib ji. Thank you so much for each and every. It has been, I think, 4 or 5 years जब आप यहाँ आए थे, फिर से हम जरूर आपको बुला लेंगे, और it will be good to be actually good to meet you. Sure, my pleasure, sir. All right. Thank you very much, sir. Thank you all the participants. We are concluding the session. Thank you. Thank you so much. Thank you.